अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज एएसके डेवलपमेंट का प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज नंबर 43 के साथ हम हाजिर हैं। और आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपकी कोशिश होती है हमारे ऐसे टॉपिक हों जो आज के हमारे ज्यादातर, इसलिए कि एएसके का प्रोफेशनल सीरीज है तो हमारे ज्यादातर जो कोलीग्स हैं, प्रोफेशनल कोलीग्स हैं। टॉपिक है आज के, हाउ टू मैनेज एंड लीड टीम्स इफेक्टिवली। हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, हम बात करते हैं लीडरशिप की, हम बात करते हैं कैसे चीजों को इफेक्टिव लेके चला जाए। तो आज हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे कि कैसे मैनेज किया जाए और कैसे लीड किया जाए अपनी टीम्स को इफेक्टिवली। एम्पावर, एंगेज, एक्सेल इन वर्चुअल वर्क प्लेस मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आज के लिए हमने बहुत लर्नेड स्पीकर्स को दावत दी है जो आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस द स्पीकर्स फर्स्ट। सबसे पहले हमारे साथ हैं कामरान रफी साहब, हेड ऑफ एचआर एडमिन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, आफाक। Kamran sir, with over 20 years of diverse experience, is a seasonal trainer, researcher, and consultant specializing in quality assurance, HR, and ISO standards. A certified quality trainer from the American Society for Quality, ASQ, he has made significant contributions to education, research, and organizational development. Holding degrees in English linguistics and professional development and professional certification in quality, Kamran Saab has played a pivotal role in curriculum development, management systems planning, and training programs. His expertise spans book development, quality audits, HR restructuring, and pedagogical training, having led over 300 workshops and multiple large-scale projects. Currently serving as the head of quality assurance and HR at AFAQ, Association for Academic Quality, he continues to drive excellence through strategic initiatives, innovations, and a passion for Pakistan's educational and organizational growth. Kamran sir, welcome to our webinar. बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और आज थैंक यू सो मच सर। और आज के जो सेकंड स्पीकर है हमारे साथ, इमरान कमर साहब, हेड ऑफ लीडरशिप, बैंक अल-फलाह लिमिटेड। Imran Khabar Saab is a seasoned leadership strategist with over 25 years of experience in leadership and organizational development. As a head of leadership at Bank Al-Falah, he spearheads the design and execution of transformative leadership programs, equipping leaders with the skill and mindset to drive sustainable organizational success. His expertise spans curriculum design, adult learning methodologies, and strategic talent development, enabling him to craft high impact learning experience that cultivate high performance teams and a culture of continuous growth. A passionate mentor and coach, Imran Saab is committed to empowering leaders at all levels, guiding them to navigate complexities with confidence and inspire excellence with their teams. His leadership philosophy is anchored in the belief that the true success lies in the synergy between individual and organizational evolution, fostering environments where both can thrive. Imran Saab, welcome to our webinar. Thank you so much for joining. Thank you very much, sir. Thank you, Ji. It's an honor sitting over here and trying to share our knowledge and expertise. Ji. सर, इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आप दोनों हजरात मौजूद हैं। और टॉपिक पे आते हैं जी, हाउ टू मैनेज एंड लीड टीम इफेक्टिवली। विद रिमोट वर्क बिकमिंग द नॉर्म, मैनेजिंग एंड लीडिंग वर्चुअल टीम्स रिक्वायर अ न्यू सेट ऑफ स्किल्स। इफेक्टिव वर्चुअल लीडरशिप गोes beyond task management. It's about fostering collaboration, maintaining engagement, and ensuring productivity across digital spaces. Strong communication, trust building, leveraging the right tools are key to leading a high performing remote team. Join us to discover strategies for successfully managing and leading virtual teams in a dynamic work environment. अच्छा भाई, लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ। आई एम द हेड ऑफ लीडरशिप एट बैंक अल-फलाह। थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि बैंक अल-फलाह में लीडरशिप हम किस तरह देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एवीपी, हमारे पास 5 टीयर्स में लीडरशिप डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन कैन नॉट बी अ लीडर। इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ अ लीडर एंड अ मैनेजर। ठीक है, लीडरशिप को जिस तरह हम डिफाइन करते हैं, जरा सा उसको भी जरा ज़हन में रखें। फिर उसके बाद फिर मैं पहले लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर मैं टीम्स के ऊपर आता हूँ। लीडरशिप इज बेसिकली इंस्पायर एंड एम्पावर। जो बैंक अल-फलाह में जो हमारा विजन है, दैट इज टू इंस्पायर एंड एम्पावर। जो कल्चर पिलर है, दैट इज टू इंस्पायर एंड एम्पावर। ठीक है। अच्छा, तो लीडर जो होता है वो एक विजन सेट करता है, एक गोल, एक चीज, एक शेयर्ड गोल्स की तरफ आता है। वो जब शेयर्ड गोल्स की वो कर लेता है, अपनी टीम को अलाइन कर लेता है, बिफोर ही डू एनी ऑफ दीज,
पहले वो अपनी टीम का स्वॉट एनालिसिस करता है, जैसे जिस तरह हम बैंक अल्फा में करते हैं। पहले हम अपनी टीम जो है उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं, और स्वॉट एनालिसिस के बाद जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, which is we test their right brain and left brain capabilities. आप में से होपफुली बहुत सारे लोग जो है इससे फेमिलियर होंगे, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से। our brain have two parts, the left brain and the right brain. Left brain जो है it's a more logical brain, the right brain is more creative brain. तो लीडर को दे नीड टू नो कि उनका ब्रेन जो है वो कौन सा ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट है कि राइट है, और जो उसकी टीम है उसमें कितने मेंबर्स जो हैं वो लेफ्ट ब्रेन है या राइट ब्रेन है। ठीक है। सेकंड, एक मैट्रिक्स है जो हमारे बैंक वाइड यूज होती है, दैट इज विल स्किल मैट्रिक्स जी। होपफुली अगर अगर किसी को कोई भी मैं चीज़ जो डिस्कस करूं, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ईमेल एड्रेस मैं शेयर कर दूंगा अपना, आप उसमें मुझे भेजें, आई सेंड यू द डिटेल्स ऑन दिस। और हार्वर्ड ने उस के ऊपर क्या लिखा है या मैकेंजी ने क्या लिखा है, वो उसकी डिटेल जो है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, लीडर जो है वो अपने टाइटल से नहीं बनता, लीडर बनता है अपने एक्शन से, लीडर बनता है अपने एटीट्यूड से, लीडर बनता है अपने बिहेवियर से, लीडर बनता है अपनी ड्राइव से, जो उसकी ड्राइव है, और लीडर बनता है अपनी एम्पथी से, और उसके बाद अपनी इंटेग्रिटी से, और उसके बाद वॉक द टॉक से। ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो फिर एक लीडर जो है वो बनता है, बिफोर ही लीड एनीथिंग। ठीक है। हार्वर्ड का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, व्हाई एनीवन बी लेड बाय यू। एक्सक्यूज मी। अगर मौका मिले तो वो हार्वर्ड का आर्टिकल जो है वो जरूर, जरा अगर नजर से गुजरे तो जरा जरूर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है लीडरशिप की, जो हम अपने बैंक अल्फला में यूज भी करते हैं, मैं वो डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डेफिनेशन है, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट मैनेजिंग और लीडिंग एनी टीम। ठीक है। जरा देखिएगा सर, फ्लोर ओपन है, दे कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। जी जी, दे कैन आस्क, वो हमें भेजे मैसेज करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आएंगे आई विल आस्क यू। अच्छा जी, टीम बैठी हुई है जो नोट करती है, जैसे क्वेश्चन आएंगे नोट करके मेरे पास पहुंच जाएगा और आई विल आस्क ठीक दोबारा हो गया, ठीक हो गया। पूछने आवाज आ रही? अच्छा जी, अब मेरी आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जो लीडर है इसका रोल जो होता है, इट्स मोर लाइक अ कैप्टन ऑफ अ शिप। कैप्टन ऑफ अ शिप वो पूरे स्मूथ ऑपरेशंस का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसको थोड़ा सा मुख्तसर ही करता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग अ लेक्चर और एनीथिंग, जस्ट क्वेश्चन आंसर में ज्यादा उस पर टाइम जरा ज्यादा लगाएंगे। ठीक है। जिस वक्त हम टीम्स की बात करें, टीम a bunch of individuals getting together जिनके कॉमन गोल्स हैं, शेयर्ड गोल्स हैं। ठीक है। उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिफाइंड होती हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या रोल वो प्ले करेंगे और क्या है। उसके बाद उनके साथ ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। किसी भी टीम की इफेक्टिवनेस के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए, ठीक है, दैट इज ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। वी ह्यूमंस आर वेरी बैड एट लिसनिंग, वी डोंट लिसन। ठीक है। हम बड़ा जोर कहते हैं कि हम बड़े अच्छा सुनते हैं, सारा कुछ है, वी आर अ वेरी गुड लिसनर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग, मैं जरा ब्रीफली अगर बता दूं। फर्स्ट टाइप इज इग्नोरिंग। दूसरा, एक इंडिविजुअल बोल रहा है, द पर्सन इज लिसनिंग, वो टोटली इग्नोर करता है कि क्या कहा जा रहा है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ।
यूजली जो हस्बैंड एंड वाइफ की या स्पाउस की जो गुफ्तगू चल रही होती है वो टिपिकली इसके ऊपर चली होती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द लेडीज कि वो बाद में क्विज नहीं करती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड टाइप इज आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड। मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं, मगर जो कुछ आप कह रहे हैं मैं रेडी हूं उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है। थर्ड टाइप इज द एक्टिव लिस्टिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है कि मैं आपकी तरफ पूरी तरह तवज्जो हूँ। ठीक है, मेरा चेहरा आपकी तरफ है और मैं नोट कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ वट एवर यू आर सेइंग, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ और सारा कुछ है। मैं यहाँ एक साइंटिफिक स्टडी आपके साथ शेयर कर दूं। इफ यू वांट पीपल टू एक्चुअली लिसन टू यू, शो बोथ ईयर्स। ये आपको छोटी सी जो है साइंटिफिक स्टडी आपके साथ शेयर करूं। शो बोथ ईयर्स। ठीक है। फोर्थ टाइप इज जो है लिसनिंग विद एम्पथी। लिसनिंग विद एम्पथी। अच्छा, यहां जरा सा डिफरेंशिएट कर दूं एम्पथी वर्सेस सिंपथी। बहुत दफा डिस्कस होता है कि जी वॉकिंग इन समवन एल्स शूज, इससे जरा सा आगे है ये। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी की जिस वक्त हम बात करते हैं, सिंपैथी, मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सॉरी, एक क्रूड एग्जांपल है इसलिए थोड़ा सा। अगर आपके किसी दोस्त की फादर की डेथ हुई है और आप जाएं और जाके कहें कि यार, हाथ रखा है शोल्डर पे, यार बड़ा अफसोस हुआ, बेसिकली यू आर डूइंग सिंपैथी। और अगर आप इस ट्रामा से गुजरे हुए हैं, अपने फादर के लॉस का, अल्लाह ताला सबके फादर को जो है जिंदगी दे, सेहत दे, अगर इस ट्रामा से गुजरे हुए हैं, वेन एवर यू वंस यू विल गो देयर, आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे बड़ा अफसोस हुआ, यू विल हैव दैट फीलिंग, दैट इमोशंस, वो जो उसके साथ अटैच होगा, दैट इज एम्पैथी। जरा सा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलता हूँ। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की मैंने बात की थी। उसके बाद इट्स अ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। क्या टीम आप पे ट्रस्ट करती है कि नहीं? क्या आप अपनी वॉक दी टॉक करते हैं कि नहीं? दैट इज वेरी क्रूशियल। उसके बाद रिस्पेक्ट। डू यू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर योर टीम एंड डू द टीम हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू? ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो यू नीड टू सी टू डेवलप द टीम इज द conflict resolutions, conflict management. There are a lot of people in the teams. There are a lot of conflicts जो होते हैं. How you basically handle those conflicts, that makes a big difference here. उसके बाद mutual support and recognition. Mutual support and recognition. और उसके बाद equality. Equality. Every individual in the team is equal. और इसके साथ ही जीरो बाइसेस। आप अपने बाइसेस जो है वो सारा कुछ जो है वो बिल्ट इन बाइसेस। ह्यूमंस, वी हैव लॉट ऑफ बिल्ट इन बाइसेस। ठीक है। और उसके बाद ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं ओनरशिप ले रहा हूँ और क्या मेरी टीम जो है वो भी ओनरशिप ले रही है कि नहीं? ठीक है। It makes a big difference once you take the ownership of any project, anything. बैंकिंग इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज सर्विसेज। जो सर्विस के ऊपर बैंक अल्फला इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इट। इसमें हम कस्टमर ओनरशिप की बात जो है उसके ऊपर वी ट्रेंड अवर इंडिविजुअल्स, वी ट्रेंड अवर पार्टिसिपेंट्स अ लॉट। और उसके बाद टैलेंट डेवलपमेंट। हैव यू डेवलप्ड योरसेल्फ फर्स्ट एंड हैव यू encouraged your team to develop एज अ टीम मेंबर? और उसके बाद क्या आप विलिंग है, रेडी फॉर चेंज? और आपकी टीम तब रेडी होगी वंस यू शो देम कि व्हाट आर आवर गोल्स एंड वेयर आई एम सॉरी, where we can go there. So setting the clear objective, that is very important.
और वर्चुअल टीम्स जो है, बिकॉज हमारे बैंक अल्फला में बहुत सारी क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, डिफरेंट जगहों पे बैठते हैं, सारा कुछ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें, दैट इज डेवलपिंग एंड बिल्डिंग द ट्रस्ट। उसके बाद फिर डेलीगेशन विद अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेट तो आप करें, वी आर वेरी हेसिटेंट इन डेलीगेटिंग। उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंसी एंड रिकग्निशन जी, रिकग्निशन, ठीक है। डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्या रिक्वायर्ड आपसे, डिलीवरेबल्स क्या है और डेडलाइंस क्या है। और उसके बाद अलाइनमेंट, योर पर्पस एंड द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस क्या अलाइन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और वी नीड टू, लास्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं कामरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें ऐड करें। How empathetic you are towards the challenges of the remote work, ठीक है। तो टीम डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर द वर्चुअल टीम, these are the very few points which I wanted to share with all with the panel जी, please। जी कामरान साहब, you would like जी to say थैंक यू सो something? मच। थैंक यू इमरान साहब। कामरान साहब प्लीज इस टॉपिक के ऊपर अगर हम ब्रीफ दें ताकि उसके बाद में सब टॉपिक्स पे जाएं, तो ऑडियंस सुनना चाहेगी आपको। जी जी, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब ने बहुत खूबसूरती से पूरे लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को जो है वो समराइज कर दिया है। और मैं इसके अंदर ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमें इसके ऑपोजिट देखना चाहिए। इफ वी वांट टू बी अ लीडर एंड वी वांट टू डेवलप लीडर्स, तो हमारे अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हमें ये पता नहीं होता कि हमने कहाँ नहीं जाना, तो हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम नहीं जाना चाहते। और इसी तरह अगर हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को भी इस हिसाब से देखें कि अगर हम ये समझना चाहें कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज है कि जो हमारे करेक्टर के अंदर, हमारी ग्रोथ के अंदर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो हम ये देखें कि व्हाट्स नॉट डिजायरेबल। किसी के भी मैं रिसर्च देख रहा था कि बेसिकली वो पेरेंटिंग से मुतालिक थी। उसके अंदर दो भाई थे, दे वर एग्जैक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। एक से पूछा गया कि अपनी केस स्टडी सुनाओ। उसने कहा कि मेरा जो है वो बाप ऐसे करता था, ऐसे करता था, मेरी माँ के साथ जो है वो ऐसे करता था, अब्यूसिव था, ये था वो था, सो दैट्स आई एम द सेम। जबकि दूसरे से जब इंटरव्यू किया गया, उसने कहा कि मैंने जो है वो ये सारा कुछ उसको करते देखा, तो मैंने ये समझा कि ये वो सारी चीजें हैं कि जो मुझे नहीं करनी। तो वी वांट टू बी इफेक्टिव लीडर, हमें थोड़ा सा सक्सेस फुल पीपल से थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। मसलन मैं उसमें पहले एक कहावत सी शेयर करता हूँ कि एक बादशाह के पास जो है वो एक थैली थी जिसके अंदर बहुत सारे हीरे थे। उसने ये ऐलान किया कि इसके अंदर फेक हीरे भी हैं और जो है वो रियल डायमंड्स भी हैं, और जो भी आके रियल एंड फेक्स को सेपरेट कर लेगा तो डायमंड्स उसके हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा करने में नाकाम होगा, जैसे इस तरह की क्लासिक स्टोरीज में होता है कि उसका सर जो है वो कलम कर दिया। बहुत सारे नौजवान आए, बहुत सारे एम्बिशियस लोग आए, उन्होंने कोशिश की, बट दे फेल्ड एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। बट एक दिन एक शख्स आया जो कि नाबीना था, और उसने आके दरबान से कहा कि मैं जो है ये अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। तो सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। बहरहाल इवेंचुअली वो बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा, तो बादशाह ने सिर्फ एक सवाल किया कि क्या तुम्हें इसकी सजा पता है कि अगर तुम ये ना कर पाए तो क्या सजा होगी। तो उसने कहा जी हाँ बादशाह सलामत, मुझे पता है। तो वो हीरो की थैली उसके हवाले की गई, उससे कहा गया कि इसको अलग कर। वो 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो वापस आया, और उसने रियल और फेक जो डायमंड्स थे वो अलग अलग बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया और इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ। उसने कहा इट्स वेरी सिंपल, मैंने इन हीरो को निकाल कर धूप में रख दिया, तो जो असल थे वो अपनी असल पे बरकरार रहे, और जो नकली थे, फेक थे, वो गर्म हो गए। सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ ट्रू वर्सेस फेक लीडरशिप।
कि एक है कि आपका पर्सनल करिश्मा है, जाहिरी करिश्मा है, आप बहुत एम्बिशियस हैं। डॉक्टर रामानी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो स्पेशली करिश्मा और लीडरशिप को स्टडी करती हैं और नार्सिज्म इन लीडरशिप को जो है के ऊपर वो एक्सपर्ट हैं। तो उनका ये कहना है कि मोस्टली जो नार्सिसिस्ट लीडर्स होते हैं वो अपने कैरियर में बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं अपने गोल्स के ऊपर और बहुत जल्दी अचीवमेंट्स करते हैं, बट सूनर और लेटर जो है दे फॉल। बस उसके अंदर एक मिसाल मैं शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे यहाँ होती थी, बड़ा नाम था, हम सबको उसका सम वे और अनदर एक्सपीरियंस रहा होगा। उसका नाम था उबर। तो वो कहाँ गई? देखते ही देखते वो आई, वो छाई, उसने राइड के कल्चर को, टैक्सी के कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन इवेंचुअली दे डिसअपीयर्ड। तो उसकी कहानी जो है वो टोटली उसके लीडर की उन इनडिजायरेबल जो ट्रेड्स हैं उनकी स्टोरी है कि वो बहुत एम्बिशियस नौजवान था जो ट्रेविस क्लार्क था जो और बहुत छोटी उम्र में उसने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो है वो करी। और फिर जब उसने उबर की बुनियाद रखी किसी एक और फर्द के साथ मिलके, तो उसने पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लेकिन कुछ ही अरसे में उसका अंजाम क्या हुआ? स्कैंडल्स, केसेस, और इवेंचुअली पहले उसको सीईओशिप से जो है वो रिजाइन करना पड़ा और फिर फोर्सली उसको जो है वो उबर के बोर्ड से भी हटा दिया गया। वजह क्या थी? नंबर वन, जिस तरह सर ने बताया, इमरान भाई ने बताया कि जी क्या डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, कि पहली वजह उसकी ये थी कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेस के लिए, और मैं बहुत जोर दे के ये बात कहूंगा कि अपनी सक्सेस के लिए दे कैन डू एनीथिंग एंड दे वांट टू डू एनीथिंग, और वो कर गुजरते हैं सारा। इसलिए बहुत तेजी से जो है वो क्रॉस कटिंग, वो जब क्रॉस वो कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर जो है वो बहुत तेजी से जो है वो आगे चले जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। कभी भी आप उन लोगों के मुंह से हम का लफ्ज नहीं सुने। यही कुछ ये करता था कि जब भी कंप्लेन्स आती थी, मैं खुद उबर पे राइड करता रहा हूँ, आप में से अक्सर लोगों को करने का इत्तेफाक हुआ होगा कि कभी भी वहां पे आपकी कोई कंप्लेन नहीं सुनता था। अच्छा, इसी तरह उबर के ड्राइवर से बात होती थी और दीगर कंपनीज के ड्राइवर से बात होती थी, तो उन ड्राइवर्स को भी यही कंप्लेन होती थी कि यहाँ पे हमारी कुछ सुनता नहीं। तो ये सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे जेन्युइनली बिलीव इन देमसेल्व्स कि दे नो एवरीथिंग, कि उनको सब कुछ पता है। तो दैट्स व्हाई दे डोंट लिसन टू एनीवन। और उसके बाद फिर जाहिर है वो बातें कि मैनिपुलेशन होती है, एम्पैथी नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं होती है। और मैं यहाँ पे दोबारा एक चीज ऐड करूंगा कि डॉक्टर रामानी, जिनका मैंने भी वो दिया, थोड़ा सा हिंट दिया एक स्टडी का उनकी, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो नार्सिसिस्ट लीडर्स हैं वो बहुत जल्दी कामयाब होते हैं, और जो एम्पैथेटिक लीडर्स हैं उनको अपनी जगह बनाने में, उनको डिलीवर करने में बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, एंड इट टेक्स देयर ब्लड। यानी उसकी वजह ये है, मैं हजरत अली का एक कॉल जो है यहाँ शेयर करूंगा कि जब हालात बहुत खराब थे तो उनसे किसी ने कहा कि ये आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं अपनी वैल्यूज छोड़ दूं और जो मुखालफिन की वैल्यूज है उनको अडॉप्ट कर लूं तो 2 दिन में ये हालात ठीक हो जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू बी एट दैट लेवल। तो एम्पैथेटिक लीडर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये होती है कि वो दोहरा चैलेंज जो है वो फेस करते हैं। और बाज़-औक़ात एम्पैथेटिक जो फर्द है उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि वो हर चीज का कसूरवार अपने आप को समझने लग जाता है। अच्छा, उसका सोल्यूशन मैंने रिसर्चेस के अंदर देखा कि उसका सोल्यूशन क्या हो जा सकता है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के बात करते हैं। लेकिन यानी एक चीज पे हमें यकीन रखना चाहिए कि बहरहाल जो शख्स भी इन इनडिजायरेबल ट्रेड्स के जरिए से लीडरशिप रोल में आ जाता है और अपनी स्पेस भी बना लेता है तो वो उतनी ही तेजी से वो गिरता भी। और यानी एक रिसर्च के अल्फाज में आपसे शेयर करूंगा कि उन्होंने कहा कि दे ऑफन गेट अहेड इन द शॉर्ट टर्म बिकॉज दे लुक लाइक हाई परफॉर्मेंस,
but in the long run they leave carnage behind. तो मैं डॉक्टर साहब की थैंक यू तरफ सो मच सर। हम जी जी, सवाल थैंक यू कामरान सर। इमरान साहब, एक सवाल आपके लिए डायरेक्टली बिलाल अहमद साहब ने कहा है कि हाउ टू ब्रिंग चेंज इन योर कॉलीग्स और टीम, स्पेशली दोज हु आर स्टबर्न, हाउ टू कीप देम ऑन द सेम पेज, प्लीज गिव सम सजेशंस। ये बिलाल अहमद साहब का स्पेसिफिक इमरान साहब आपसे क्वेश्चन। अच्छा, ये एक तो सर रमजान में रखा गया है, गला पहले बिल्कुल खुश्क है, ये जरा बाद में जरूर रखिएगा, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर वी कैन टॉक फॉर आवर्स। हमें तो ये डेली बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ जरा शेयर करूं। ये जो क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग इज, एक सेकंड, ये मेरे पास शो डिफरेंट तरह हो रहा है। हाँ, अब पहली चीज तो ये है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं इस वक्त, वी हैव अ मिसट्रस्ट ऑन एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जरा आप देख लें, डिफरेंट जनरेशंस जो है वो घटी चल रही है। वी हैव सीन सो मेनी न्यू जनरेशंस कमिंग इन द वर्कफोर्स। ये जो मिसट्रस्ट है, ये इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी से बात करें, गुफ्तगू हो रही हो, सारा कुछ है, अगर आप उससे को बात करें, जो वो जवाब देने लगता है, सबसे पहले कहता है नहीं, नहीं, और उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करता है। ये एक एक तरीका चल रहा है माशरे में। मिसट्रस्ट जो है, ठीक है, उसको किस तरह हम खत्म कर सकते हैं या अलाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले 7 और 8 पिलर्स हैं ट्रस्ट के, वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। यू नीड टू डेवलप द ट्रस्ट अमंग द लीडर एंड द टीम, ये डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद फिर जब आप आ, आ, किस तरह अलाइनमेंट पैदा करें? इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप लीडर्स, इट इज वेरी इजी टू डेवलप फॉलोअर्स। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने हमेशा देखे होंगे, हर्ड्स काउस के हैं, शीप्स के हैं, सारे होते होते हैं। हैव यू एवर सीन अ हर्ड ऑफ कैट्स? किसी ने आज तक देखा हो हर्ड कैट्स का? ठीक है, वी ह्यूमंस आर पर्सनैलिटी वाइज, एवरी कैट हैव अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। इसी तरह इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। तो लीडर्स, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द लीडर्स, वो फॉलोअर्स पैदा करना जो है उनके लिए आसान होता है। अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अलाइनमेंट में थोड़ा सा, अगर मुझे थोड़ा सा चांस दे, मैं ये इसको जरा सा डिस्कस करूं। सबसे पहले, हायर ग्रेट पीपल एंड स्टेप असाइड, स्टेप असाइड। ठीक है, मैं इसमें एक हार्वर्ड का एक आर्टिकल आपके साथ मेंशन करता हूं। मैनेजमेंट टाइम हु गॉट द मंकी। ठीक है, इट्स अ हार्वर्ड क्लासिक आर्टिकल, इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल। क्या है, मैं जरा अब मैं पहले बहुत ज्यादा एम्फोसिस देता था सबसे कि भाई पढ़ो, को बुक पढ़ो या कुछ पढ़ो। मैं इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड अ बुक इन द लास्ट 6 मंथ? अगर मैं परसेंटेज निकाल लूँ, 5 to 10% से ज्यादा नहीं होंगे। आई डोंट इवन से कि यार आर्टिकल्स भी पढ़ो, अब तो मैं कहता हूँ कि बेटा सिंपल टेड टॉक्स देख लो। ठीक है, 8 से 10 मिनट में ऑथर ने अपना कंप्लीट जो है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है। सेकेंड, डोंट माइक्रो मैनेज, एम्पावर योर टीम। अच्छा, एम्पावरमेंट पे जैसे ही हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम अब बैंक अल्फला में भी बात करते हैं। जैसे मैं अभी अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले, लास्ट फ्राइडे की, मैं अपने एक पूरा एक हमारा वो यूनिट था, उनके साथ डिस्कशन में था। उन्हें कहा, मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू एम्पावर? उन्होंने कहा, सर जिसको एम्पावर करते हैं वो जो है ना काम का बेड़ा गर्क कर देता है, और उनसे काम कराना जो है ना उसके बाद नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, टीम और इंडिविजुअल्स की फॉल्ट जरूर है, मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर लीडर्स की भी कई दफा फॉल्ट है। लीडर्स, दे माइक्रो मैनेज इन सच अ वे कि वी आर नॉट विलिंग, एज अ लीडर वी आर नॉट विलिंग टू डेलीगेट। वी आर अफ्रेड, यार इसको सिखा दिया, ये मेरी सीट पे ना आ जाए। ठीक है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, देर आर 8 to 10 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस।
अब माइक्रो मैनेज की साइंस क्या है? लीडर दे आस्क फॉर अ कांस्टेंट अपडेट एंड अप्रूवल्स। भाई मुझे दिखाओ, मुझसे अप्रूवल लो, वो सारा कुछ है। इनफ्लेक्सिबल होते, डिफिकल्टी इन डेलीगेटिंग। यार मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर बैंक अल्फला के एक बहुत सीनियर जो है एम्प्लॉय, मैं उनके पास बैठा हुआ था। एक बच्चा भागता आया, उन्होंने कहा सर ये काम फंस गया है, स्टेट बैंक रिपोर्ट करना है, ये जरा देखे। कहते हैं यहाँ रख जाओ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि सर आपने इसको सिखाया क्यों नहीं? कहते हैं यार इसको 10 मिनट का काम है, 2 घंटे लगेंगे इसको सिखाने में, उसके बाद फिर ये जो है फिर गलत कर देगा, फिर मुझे ठीक करना है, तो मैं क्यों ना खुद कर लूं। ठीक है, ये जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट का गैप है ना, कि ये गलत ही करेगा, जिसकी वजह से है बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो अलाइन नहीं होते आपके पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के साथ ही। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे जो इस वक्त पेरेंट्स बैठे हुए, ठीक है, मेल राइवलरी चलती है एक। मैं पहले फैमिली की बात करता हूँ, फिर ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता हूँ। मेल राइवलरी की बात कर चलती है, एक फादर की राइवलरी चलती है अपने बेटे से। जरा ऑब्जर्व करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा भी जरूर। वो what is the reason? They both are in love with this one woman. वो वो कहता है, बेटा आके कहता है कि अपनी माँ से कहता है कि अपने हस्बैंड को समझा लो। ठीक है, हस्बैंड कहता है ये क्या है तेरा बेटा। ये राइवलरी, दिस राइवलरी कैन, यू कैन ऑब्जर्व द सेम टाइप ऑफ राइवलरी इन दी। अच्छा राणा साहब, अगर मैं ज्यादा बोल जाऊं, मुझे तो बोलने का बड़ा शौक है, तो जरा मुझे प्लीज कट जरूर कर दीजिएगा। यार हमारे पास ना 7-8 क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन कंप्लीट अच्छा करें ताकि अच्छा, हमें बस दूसरे मैं ये क्वेश्चंस जरा पे। जरा सा 1 मिनट और दे, मैं इसको वाइड जी अप जी, करता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, उसके बाद ये जरा देखे, क्या लीडर जो है वो रेडी है अपनी स्लीव्स को रोल करके डिग इन करने के लिए? ठीक। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्या उसकी क्लियर है कि नहीं? अलाइनमेंट के लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रायोरिटाइज भी किया उसने वर्क को कि नहीं? आपकी प्रायोरिटी कुड बी वेरी डिफरेंट देन द प्रायोरिटी ऑफ योर टीम मेंबर। और उसके बाद फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फीडबैक जी। फीडबैक के लिए वर्ल्ड का जो बेस्ट मॉडल है दैट इज कॉल्ड द सैंडविच मॉडल। सैंडविच क्या होता है? ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड ऑन द टॉप, बीच में कुछ मीट या वेजिटेबल जो भी है, और अनदर पीस एट द बॉटम जी। इसी तरह सैंडविच बनता है। सैंडविच मॉडल क्या कहता है? यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव, देन द थिंग्स विच नीड टू बी चेंज्ड मिडल में आती, और उसके बाद अनदर पीस ऑफ ब्रेड, दैट इज द पॉजिटिव। यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, अनदर पॉजिटिव। If you start with a negative, if you start criticizing, if you are critical with criticizing with your team, they become very defensive. They become very defensive. Hopefully I'll be able to answer your question. Please. जी जी, थैंक sorry यू सो मच sorry I इमरान have साहब। taken more time than नहीं नहीं actually. नहीं नहीं, इट्स आपकी बहुत इनसाइट, वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं, तो वी आर लर्निंग। कैमरान भाई आपकी तरफ आता हूं मैं, और जी इस ये क्वेश्चन भी है और ऑटोमेटिकली हमारे सब टॉपिक भी कवर हो जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ द टीम कैपेबल फॉर लीडरशिप। एक तो चले हम जब बात करते हैं तो वी हैव टू, आपको सब लीडर्स भी करने होते हैं, आपको डेलीगेशन भी करनी होती है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्या ट्रेड्स होनी चाहिए कि उस एक लीडर को लीडर बनने की कैपेबिलिटी के? लेकिन उसका बहुत सादा सा असूल है कि डिग्री की बजाय रवैया देखा जाए। नॉर्मली हम सबको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, आपको भी होता है। हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज करते हैं एचआर में, तो हमारा काम ही होता है हायरिंग के लिए। तो व्हाट वी सी सिंपल, कि क्या नंबर वन ये लर्नर है कि नहीं है, सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता। अगर वो सीखना चाहता है तो उसके अंदर वो मादा होगा जिसकी तरफ जो है वो इमरान साहब भी इशारा कर रहे थे, कि वो अपनी गलती को भी मान सकता है और सीख भी सकता है, करेक्शन भी ले सकता है।
और अगर वो नहीं होगा तो वो फिर वही राइवलरी चलेगी, और वो दबा के रखने वाला कल्चर, और ये खौफ कि भाई अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो कोई जो है वो मेरी जगह न ले। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ही और शी मस्ट बी अ लर्नर। नंबर टू, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या वो डूअर भी है कि नहीं है, सिर्फ लर्नर ही है। वो अपना गोल जो है, अपना सारा जो एफर्ट है वो अपने काम में डालता है कि नहीं डालता। और उसका बड़ा आसान सा टेस्ट मैं अमूमन ये लेता हूँ। मैं इसमें हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस की जाती है कि हम इंटर्नीज को लेते हैं और उन्हें फिर मुख्तलिफ शोबाजात में भेजते हैं, और उनका जो है वो एप्टीट्यूड भी और एटीट्यूड भी, दोनों चीजें जो हम स्टडी करते हैं। तो एक मिसाल के तौर पे मेरा एक खास बैकग्राउंड है, और मैं उस शोबे में चला गया। दैट्स नॉट द चैलेंज। आप उसको कोई ऐसा टास्क नहीं जो उसके लिए बिल्कुल नया है। अच्छा, ये मेरे लिए कतई मैटर नहीं करता कि वो टास्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उससे वो ठीक तरीके से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। इफ ही और शी पुट्स एफर्ट इन इट, और वो जो जिस एफर्ट को वाकई आप कह सकते हैं कि हाँ तुम ठीक से लड़े हो, तो दैट पर्सन इज कैपेबल ऑफ बीइंग अ लीडर। तो ये डिपेंडिंग इस ये इट डजेंट मैटर कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसका एक्सपीरियंस क्या है। हार्वर्ड की एक स्टडी भी है कि ये सिर्फ 15% मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। 85% मैटर ये करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, और आप आगे उसको सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। होप आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। हम जिस कल्चर से हैं, ये कि जो गलती नहीं करता वो सीखता नहीं है। और सेकेंडली, अगर आप लोगों को चांस ही नहीं देंगे तो आगे डेवलप कैसे होंगे। और उन्हीं में से इमरान साहब, एक क्विक क्वेश्चन। क्या सीरत बतूल साहिबा पूछती हैं, क्या लीडर इनबॉर्न एबिलिटी है कि हम अपनी इस चीज को डेवलप भी कर सकते हैं? क्या करना चाहिए डेवलप करने के लिए? इनबॉर्न होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगर कोई इंसान अपने आप को कि किस क्या अपने अंदर डेवलप करे, क्या चीजों को लर्न करे, क्या फोकस करे टू बिकम अ बेटर लीडर? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है ये एक मिसकंसेप्शन है कि लीडर्स जो हैं वो हमेशा पैदा होते हैं। ठीक है, लीडरशिप इज अ डायनेमिक स्किल। एनीवन हु इज विलिंग एनीवन हु इज विलिंग टू लर्न कैन बिकम अ लीडर, कैन बिकम अ लीडर। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन था, मैं उस पे आने से पहले जरा सा एक, अगर मुझे अलाउ करें। जी सर। लीडर्स अपनी टीम की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत सारे, योर वर्ड्स मैटर अ लॉट। जो हम कहते हैं विच मैटर्स अ लॉट। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक लीडर कहता है व्हाट कैन आई डू टू सपोर्ट यू बेटर, इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। और इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, गलती करो, काम करोगे तो गलती भी करोगे। अगर तो वो आई एम सॉरी, उसके बाद योर कंट्रीब्यूशन मेक्स अ डिफरेंस। तुम्हारी जो कंट्रीब्यूशन है मेक्स अ डिफरेंस। हाउ कैन आई मेक योर जॉब इजियर? मैं किस तरह आप तुम्हारी जॉब को जरा आसान कर देता हूँ। और थर्ड जो थिंग है हमारी, वी आर वेरी बैड एट एक्नॉलेजिंग people when they are right. To develop the capability to listen and act small, act multiplier. फ्रैंकलिन कवि का पूरा एक प्रेजेंटेशन है, पूरी एक वो ट्रेनिंग है, हाउ टू एक्ट बिग एंड हाउ टू एक्ट स्मॉल। ठीक है, लीडर्स अपनी टीम को जिस वक्त डेवलप कर रहे होते हैं, वो दे कैन एक्ट, ईदर एक्ट एज बिग और एक्ट एज स्मॉल। जहां वो एक्ट करते हैं एज बिग, दे डोंट अलाउ देयर टीम टू ग्रो। और वेयर दे एक्ट स्मॉल, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से जरा होपफुली क्लियर होगा। मैं अगर आया हूँ, मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है, मैं कमरे में दाखिल हुआ और मैं कहता हूँ कि यार हमें ये प्रॉब्लम आया है, मेरा ख्याल है ये सोल्यूशन है, तुम्हारा क्या ख्याल है? एंड आई स्टार्ट आस्किंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, डू यू थिंक आई विल गेट अ कैंडिड ओपिनियन और एनी न्यू सजेशन? एवरीथिंग विल बी टेलर्ड अराउंड जो मैंने कहा है।
The second type, which is called the inspirational leader, वो क्या है? वो आके कहता है कि यार, this is the problem we are facing. What could be your suggestion to basically improve it? And let everyone come up with their solution. जी, यहाँ एक मैं कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर दूंगा. हार्वर्ड आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिख रहा है. दैट इज इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट लीडरशिप. जी, इंट्रोवर्ट्स वर्सेस एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जो पीछे हो जाते हैं जब डिस्कशन हो रही हो, मीटिंग हो रही हो, कुछ हो, वो चुप करके पीछे होके बैठ जाते हैं. Sometimes they have lot of new ideas, new things, मगर वो outward, outbound नहीं होते. Extroverts वो होते हैं, एग्जाम्पल अपनी नेक्स्ट टाइम मीटिंग हो, आप जरा देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा, 2 या 3 बंदे ऐसे होंगे जो मीटिंग को हाईजैक कर लेंगे. दे हैव अ सर्टेन ओपिनियन और उस पर वो लेके चलेंगे और उसी के ऊपर लेके चलते हैं. लीडर, टू बिकम अ लीडर यू नीड टू डेवलप, to say, I have complete confidence in my team, and to learn to say thank you. What to and ask for their opinion. जी, लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं? There are 123 different skills जो आइडेंटिफाई हुई हैं फॉर द लीडरशिप. जी, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट टू बिकम अ लीडर इज एम्पैथी. एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आपको मौका मिले तो हार्वर्ड का जो आर्टिकल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ एज अ लीडर, डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक जी सर? जी ठीक है सर. मेरे ख्याल में इंटरनेट में कोई इश्यू है इन बिटवीन. कैन यू हियर मी? अब आवाज आ रही, बीच में रुक गई थी बिल्कुल. अच्छा, बीच में बीच रुक में गई रुक थी. मेरे गई. ख्याल है नेट में कोई ब्रेकेज आई थी. जी. अच्छा, आई एम सॉरी, वो सारा कुछ है. नहीं, अच्छा, आपने जी आई एम सॉरी. उनकी आवाज नहीं आई, राणा साहब की. मेरी आवाज आ रही राणा है साहब, आपको? राणा साहब जी आवाज अब आ रही है? Yes, sir, you are audible. दरम्यान में जी audible, ठीक है. कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, वी आर हियरिंग यू. अच्छा जी, प्लीज. सर, कमल भाई आपकी तरफ आता हूँ. एक क्वेश्चन है. देखिए, बात हम लोग इस वक्त, जाहिर बात है हमारे था कि इफेक्टिव लीडरशिप हम करें. क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन भी मैं समराइज करता हूँ. लोगों का एक जर्नल है कि डिसएग्रीमेंट को कैसे हम मैनेज करें. और ज्यादातर लोगों के इसी तरह क्वेश्चन है कि जी टीम के अंदर जूनियर्स आपकी बात नहीं मान रहे, और तो क्या करना चाहिए. डायलॉग वी नो, बट अगर इसको ब्रीफ करेंगे, विद इन टीम आप लीडर हैं, आपको लीडरशिप मिल चुकी है, यू हैव टू एक्ट एज लीडर्स, तो सबको अलाइन रखना, डिसएग्रीमेंट्स को कैसे मैनेज करना. खासतौर पे वर्चुअल में जब फेस टू फेस चीजें होती थी कंपैरेटिवली आसान होता था, और वर्चुअल लोग जो बैठे, तो इस चीज पर्टिकुलर उसके टाइम में हमारे पास बहुत कम रह गया, 9 मिनट रह गए सिर्फ. तो इसको कैसे मैनेज करें कि विद इन टीम डिसएग्रीमेंट्स को सबको साथ लेके चलना, इसको कैसे हैंडल किया जाए. इसके 2 पोर्शन हैं. एक ये है कि टीम में जाहिर है कि मुख्तलिफ यूनिक लोग होते हैं, हर एक फर्क होता है. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सबको आप एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते हैं. आपके पास स्टार्स हैं, उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है. आपके पास स्विंगर्स हैं, वो जो है कभी परफॉर्म करते हैं, कभी परफॉर्म नहीं करते हैं, उनको आप डिफरेंट तरीके से डील करेंगे. आपके पास रेजिस्टर्स हैं, ये वो लोग हैं कि जो हर चीज जो है वो कुछ रेजिस्टेंस के बाद करने के ऊपर तैयार होते हैं. तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करता है. ये बेसिकली मैंने ग्रिड बनाया हुआ है कि लीडर ने जो है वो अपने टीम में मुख्तलिफ लोगों को किस तरह से डील करना है. तो हर एक को डील करने का फार्मूला जो है वो फर्क होगा. तो इस तरह के लोगों के साथ डील करने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये है कि बिल्कुल क्लियर, स्पेसिफिक और जिसे कहते हैं ना ऑप्शनल कम्युनिकेशन करें. 1 2 3 4. तो अगर आप हर चीज को ओपन एंडेड छोड़ के स्टार और स्विंगर्स की तरह बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ देंगे तो यू नेवर रीच एनी एग्रीमेंट. तो आपको कुछ चीजों को डिलिमिट करना होगा, कुछ डिस्कशंस को कंट्रोल करके
बिल आखिर चंद स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लाना होगा और उन स्पेसिफिक ऑप्शंस के ऊपर फिर जो है लोगों को चॉइस देंगे जी आप इसके अंदर से सिलेक्ट करें, और फिर उनका जो फीडबैक है वो बिल्कुल क्लियर और रिटर्न होगा, तो वो जो है किसी ना किसी नतीजे पे आप पहुंच जाएंगे। रिमोट दूसरा इसका पार्ट है, रिमोट टीम्स को जो है वो किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उसके अंदर जो मेरा जाती मुशाहिदा भी है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग वो टाइम की कैलकुलेशंस के अंदर पड़ जाते हैं। सॉफ्टवेयर भी हैं, टाइम स्टैम्प्स चल रही होती हैं, वो सारा कुछ चल रहा होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक शुरू में लफ्ज इमरान साहब ने यूज किया था, डिलीवरेबल। तो अगर आप अपनी टीम को हर टास्क के अंदर डिलीवरेबल की सेंस दे दें कि भाई आप 1 घंटा काम करें या आप 15 घंटे काम करें, लेट्स एग्री ऑन दिस कि ये काम है, इसको हमने इतनी देर में कंप्लीट करना है, ये उसका अर्जेंसी लेवल है, इसको आपने कंप्लीट करके सबमिट करना। अब मैं आपके ऊपर उसके लिए दरोगा नहीं बन रहा कि मैं आपको सारा दिन आपको फोन कर करके ये चेक करता रहूं कि आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि नहीं है, आप बैठे क्यों हुए हैं, आप लेटे क्यों हैं। ये मेरा बिजनेस नहीं है। मुझे वो आउटकम चाहिए जो हमने उसका टास्क डिसाइड किया था और उसका जो प्रोसेस हमने डिसाइड किया था। और हमें इस चीज का तजर्बा हुआ बहुत ज्यादा कोविड के दौरान कि जब सारी टीम्स रिमोटली घर से काम कर रही थी। अच्छा, मेरा जाती यानी कह लें कि उसमें तजर्बा ये था, मेरी पूरी उस वक्त क्यूए की टीम थी, तो हम सबका मिलकर ये फीलिंग थी कि कोविड में हमने रूटीन से बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि टास्क बहुत क्लियर होते थे। हम किसी को कुछ नहीं कहते थे कि भैया आए क्यों नहीं हो, इतने बजे क्यों नहीं हो। हाँ, जस्ट अगर हमने एक टीम की मीटिंग बुलाई है कि जिसके अंदर हमने कोई चीज डिस्कस करनी है तो सब लोग अवेलेबल है। उसके बाद एक ड्यू लाइन है और उसके अंदर लोगों ने अपना अपना काम जो है वो सबमिट करना है। और फिर जो लीडर का वहां सबसे इंपॉर्टेंट काम है, या मैनेजर कह लें उस सेंस के अंदर, क्योंकि ये मैनेज करने वाली चीज है, तो उसने बिल्कुल क्लियर 1 2 3 करके फीडबैक प्रोवाइड करना है। तो इंशाल्लाह ताला सब लोग जो है वो अलाइन होके डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भी आपकी जो गोल है या टास्क है उसकी अचीवमेंट तक पहुंच जाएगा। थैंक यू कमल साहब। मोहम्मद अली साहब का एक क्वेश्चन है, हाउ कैन अ लीडर इंश्योर टीम मेंबर्स टेक ओनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी विदाउट कांस्टेंट फॉलोअप्स डिस्पाइट अप्लाइंग एम्पैथी रिस्पेक्ट एंड एनकरेजमेंट, सम स्टिल डोंट गिव देयर 100% व्हिच कैन बी डिमोटिवेटिंग। मोहम्मद अली साहब एक इसलिए कि ऑलरेडी इसको हम समराइज कर चुके हैं। देखें, आप अपना सिस्टम जरूर है, जब आप लीडर है ना तो सिस्टम ऐसा बनाइएगा कि आपकी टीम को पता चलता रहे वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, खासतौर पर रिमोट। तो आप सिस्टम्स ऐसे बनाए, डैशबोर्ड्स बनाए, वेल स्कोर कार्ड्स बनाए, तो उनको हर वक्त पता चलता रहे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि उन्हें खुद पता चले कहाँ लैकिंग है। तो इंस्टेड के वो प्रोजेक्ट खत्म हो या 3 महीने बाद जाके उनको पता चले, तो उनको ऑन स्पॉट ये पीरियोडिक शॉर्ट पीरियड से पता चलना चाहिए कि किधर गैप्स आ रहे हैं। सर इमरान भाई, आपके लिए क्वेश्चन है डॉक्टर अब्बास साहब का। वो कहते हैं जी, इस सारे प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एक बड़ा नाजुक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। उससे क्या 5 मिनट रह गए, तो ये इसके बाद हम 1 2 क्वेश्चन और लेंगे अगर टाइम बचा तो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बड़ा खुद एक सब्जेक्ट है। तो लीडरशिप में और इस रोल में जब इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, एक केस स्टडी है, अगर आप देख सके, फार्मूला 1 में फरारी की जो उसकी पिट्स पे जो टीम है उसके ऊपर बड़ा ही रिसर्च हुई है, बड़ा कुछ उस पे लिखा है। यूट्यूब पे अगर जाएं तो एक दफ़ा ज़रा ज़रूर देखिएगा। वो जिस वक्त फार्मूला 1 की गाड़ी आके रुकती है उसके चारों टायर चेंज होने, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि जी कुछ टाइम लगेगा, चारों टायर चेंज हो रहे हैं, सारा कुछ है। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था, लेस देन 2 सेकेंड्स में उन्होंने देवर एबल टू डू इट, ठीक है, चेंज ऑल द 4 टायर्स। तो टीम की अगर इफेक्टिवनेस को देखना हो तो वो ये है, मगर जहां जहां टीम होगी वहां कन्फ्लिक्ट जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी? यस, जरा साथ साथ ये बताते जाइए वेरी ताकि वो ऑडिबल है सर, आप बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जहां फिर कन्फ्लिक्ट आता है वहां आपका रोल क्या है कि यू नीड टू स्टे ऑन द प्रिंसिपल्स, you need to walk the talk, you need to develop build strong relationships जी। अच्छा, एक चीज और है, मैंने शुरू में जिक्र किया था विल स्किल मैट्रिक्स का। अगर डॉक्टर साहब जरा आप जरा प्लीज सर्च कर लीजिएगा विल स्किल मैट्रिक्स का। मेरी कितना विलिंग हूं
टू परफॉर्म और मेरा स्किल सेट कितना है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर चलता है। और अगर मेरा स्किल सेट कम है और विलिंगनेस ज्यादा है तो फिर मैं सीख जाऊंगा, मैं विलिंग हूँगा, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी। और अगर मेरा विलिंगनेस भी लो है और स्किल सेट भी लो है, फिर मैं कहूँगा सर 5:30 हो गए हैं, छुट्टी का टाइम हो गया, ये सर वो क्या है, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसा कोई जो है टीम मेंबर ऐसा आ जाए जो इसका विलिंगनेस भी लो है और स्किल सेट भी लो है, उसके साथ यू नीड टू वर्क a lot with that person. उसके साथ you need to discuss those short term targets, short term goals. You need to mentor that person, not coach. फर्क जरा देख लीजिएगा, mentor that individual. You need to develop his capabilities. और किसी वक्त अगर वो सारा कुछ करने के बावजूद अगर वो नहीं 100% अपना देने को तैयार, तो sometimes you need to let go of few individuals also. थैंक यू सो मच। इमरान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लीडर्स की और उसकी टीम में कभी कभी एनर्जी डिफरेंस होता है। लीडर बहुत एग्रेसिव जा रहा होता है, टीम है उसमें मिक्स एनर्जी लेवल्स के लोग होते हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे कोप अप किया जाए? उसमें पहला मैं तो ये करूँगा कि जो एम्पैथी का हमारा पॉइंट है कि इफ यू वांट टू बी अ ट्रू लीडर, बी अ ह्यूमन। और वर्क और इंसान, काम और इंसान, इसके दरमियान में बैलेंस रखें। मे बी यू वांट टू टच द मून, लेकिन चले आप जो है वो थोड़ा नीचे पे भी कंप्रोमाइज कर लें। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। रीड होफमैन, ये जो इसका लिंक्डइन का बानी है, उसने बड़ी मजे की बात की। उसने कहा कि आप ये जो एलन मस्क की के साथ जिन लोगों ने काम किया है उनसे कभी पूछें तो आपको 2 तरह के जवाब मिलेंगे। एक वो लोग होंगे इट वाज फैंटास्टिक बट आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम अगेन। और दूसरे वो होंगे, वो कहेंगे कि बहुत ही फजूल, बहुत ही बुरा, लेकिन मैं उसके साथ अब काम नहीं करना चाहता। तो ये सिर्फ ये देख लीजिए कि आपकी स्पीड और आपकी टीम की स्पीड अगर रेजोनेट करेगी आपस में, तो ही आप लॉन्ग टर्म कर चल सकेंगे। उसमें अमूमन मैं एक एग्जांपल देता हूँ अमेरिकन वर्सेस जापानीज कल्चर की। कि जापानीज कल्चर के अंदर जो है वो एक गाड़ी अगर 120 उसकी मैक्सिमम स्पीड है तो उसको 100 पे लॉक कर देते हैं कि भाई 100 से ऊपर इसको नहीं चलाना। फिर वो लॉन्ग टर्म चलती है, ज्यादा देर डिलीवरी देती है और लोग भी जो है वो बर्नआउट नहीं होते हैं। अमेरिकन का स्टाइल यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि वो जिसने 120 पे चलना है उसको 140 पे चलाओ, और उसके बाद फौरन जो है वो एक क्राइसिस पैदा होगा और वो मशीन जो है वो बंद हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो हीरोइज्म जो है वो आ जाएगा। तो मैं तो इसके अंदर बिल्कुल यही कहूंगा कि सिर्फ अपनी एम्बिशंस के ऊपर मत चलें, बल्कि अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना असल लॉन्ग टर्म जो है वो सक्सेस है। और उसी में जो है वो आप जो है जिसे कहते हैं कि कामयाबी को पायदार बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के सेशन का इंशाल्लाह रमजान के बाद इस सेशन को एक और इसके ऊपर सेशन रखेंगे, इन्हीं स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए कि क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, इंटरेस्टिंग भी, और ये वाकतन बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इसको 1 घंटे में किया जाए। इमरान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर अवर ऑडियंस। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारा क्लोज हो गया है, तो क्लोजिंग रिमार्क्स, और इंशाल्लाह वादा है हमारे ऑडियंस के साथ कि हम जरूर इन्हीं स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करेंगे और रमजान के बाद फिर कोशिश करेंगे एक सेशन रखने की। सर, ऑडियंस सुनना चाहेंगे, जस्ट सेशन को क्लोज करें अपने रिमार्क्स के साथ। अच्छा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। पहले तो आप अपनी विलिंगनेस चेक कर लें कि आप लीडर बनना भी चाहते हैं कि नहीं। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि यार सैलरी लगी हुई है, सुकून है, आराम है, तो बैठे रहो, तो उसके अगर तो उस फॉर्म में है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। इफ यू आर विलिंग टू परफॉर्म और लीडर बनना चाहते हैं और अपनी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं, देन यू नीड टू सिट डाउन एंड राइट योर रेजोल्यूशन। जैसे नया साल शुरू होता है, हम रेजोल्यूशंस लिखते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन लिखते हैं, इसी तरह फिर आप अपनी लीडरशिप की रेजोल्यूशंस जो है वो लिखते हैं। वो रेजोल्यूशंस क्या हो सकती हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
एक आध सिर्फ देता हूं ताकि फिर आपको वो आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं. Once I say I will enhance communication. I will cultivate empathy. I will recognize achievements. इस तरह आप अपनी पहले रेजोल्यूशंस लिखें और देखें कि आपका माइंडसेट क्या है. क्या आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, कि नहीं? ठीक है, स्टैटिक माइंडसेट पे तो नहीं. अगर ग्रोथ माइंडसेट पे हैं तो फर्स्ट यू विल डेवलप योरसेल्फ एंड देन यू विल डेवलप योर टीम आल्सो. तो my last bit is sit down and write your resolution कि आप एज अ लीडर क्या करना चाहते हैं. ठीक, थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कामरान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स. बस मैं यस करूंगा कि नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी. तो सही. अंडर परफॉर्मर को अगर आप परफॉर्मर बना लेते हैं तो दैट्स योर ट्रू लीडरशिप. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच कामरान साहब. थैंक यू सो मच इमरान साहब. आप दोनों के टाइम का बहुत थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया. मच. आपकी बहुत बहुत शुक्रिया. वैल्यूएबल डिस्कशंस रही. ऑडियंस आप लोगों का हमें सुनने का, क्वेश्चंस पूछने का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे. याद रखिएगा, लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे कामरान साहब ने कहा कि किस लोगों को साथ लेके चलना. ऐसे लोगों को, हर इंसान की कमजोरी हर इंसान में मौजूद होती है, और लीडर, एक ट्रू लीडर वो होता है जो अपनी टीम को उनकी कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट करता है और आगे लेके जाता है और मेक श्योर करता है कि वो एक्सेल करें. इसी के साथ इजाजत चाहेंगे. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफिज जी.